Okay, so this is zenithal equidistant projection, and this is the projection which shows true distance. इसीलिए इसका नाम है equidistant projection. और for this projection, we do not draw the projection base. इनफैक्ट वी डू ड्रॉ द प्रोजेक्शन बेस, लेकिन इसमें इसकी कैलकुलेशन या इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर हम फार्मूला यूज़ करते हैं, और फार्मूले के थ्रू वी कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल्स. हर प्रोजेक्शन में whichever projection you are making, चाहे वो zenithal projection हो या conical projection हो या cylindrical projection हो, in every projection drawing of meridians are easy. मेरिडियंस को बनाना आसान है, वो एक ही उसमें पैरामीटर यूज़ होता है कि अगर वो जेनिथल टाइप है तो आप उसमें डिग्रीज मार्क कर देते हैं इंटरवल के अकॉर्डिंग. अगर सिलेंड्रिकल है तो उसमें आप उस लाइन को डिवाइड करते हैं कि हमें कितने मेरिडियंस बनाने हैं. एंड फॉर सिलेंड्रिकल अगेन कॉनिकल, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. सो इन एवरी प्रोजेक्शन, ऑल इन ऑल, शॉर्ट में हर प्रोजेक्शन के अंदर मेरिडियंस को बनाना आसान होता है. मेन डिफरेंस पैरेलल के डिस्टेंसेस का होता है. ठीक है, तो इस प्रोजेक्शन में भी हमने जो इस प्रोजेक्शन में भी we are focusing on the distance between the parallels. So वो distance हम कैसे निकालेंगे without making the projection base. So let's see how it is done. सवाल है, draw a zenithal equidistant projection for the northern hemisphere using RF 1:250 million and the projection interval of 10 degrees. So solution for this. If you remember, हर projection के अंदर हमारा पहला step होता है finding out the reduced radius. And how the reduced radius is found, let me copy the matter from a previous slide to save time. So yeah, there it is. So that's how the reduced radius will be calculated by dividing the actual radius of Earth with the RF ground value, और अर्थ का एक्चुअल रेडियस है 250 मिलियन इंचेस या 637 मिलियन सेंटीमीटर्स. तो हमने RF को डिवाइड किया तो हमारे पास रिड्यूस्ड रेडियस आया 1 इंच. ओके, नाउ आफ्टर द रिड्यूस्ड रेडियस we will find out the distance between parallels. This is the equidistant projection, और इसमें पैरेलल्स का डिस्टेंस सेम होगा तो हमें एक ही दफ़ा फार्मूला यूज़ करना है, और एक ही फार्मूले से वी विल कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड वी विल यूज़ दैट डिस्टेंस टू कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्शन. सो द फार्मूला इज 2 pi r. I've just written pi like this. Okay, so I'm copying the pi from here. Okay. The distance between parallel is 2 pi r. That r is the reduced radius जो हमने अभी calculate किया है, and multiply by
2 pi r into the interval divided by 360, that is the total number of degrees on a sphere. So this is the distance between parallels. This is the formula कि 2 pi r multiplied by interval over 360. अगर आपका interval 10 होगा तो 10 over 360, and if it's 15, 15 over 360. So that depends upon the question which is given. आपके सवाल में है in your question, the interval is 10. So we will divide with 10. 2 pi r 10 over 360. Pi की value है 3.142. So if we solve that, okay, so I am asking you guys to tell me the answer for this. You must have the calculator. Tell me the answer. I do have the answer, but I want you to just work upon it and tell me. 2 pi r multiplied by 10 over 360. Quick. So the answer is 0.174 inches. And this is the distance between all the parallels. Okay. Thank you, Mariam and Ahmed, for your responses. So using this distance, what you will do, you will come directly to the construction of actual projection. And how that actual projection will be made. So ओके सो हमने अभी कैलकुलेशन की और जिस प्रोजेक्शन में हम प्रोजेक्शन बेस नहीं बनाते बल्कि डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं दोज प्रोजेक्शंस आर द नॉन पर्सपेक्टिव वन. सो दिस इज़ अ नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और इसके लिए हमने कैलकुलेशन की और उस कैलकुलेशन की बेस पे वी विल कम स्ट्रेट अवे टू द एक्चुअल projection. So this is not zenithal orthographic projection बल्कि ये है zenithal equidistant projection. ठीक. So what you will do, first step will be to draw a vertical line in the center of the page. अगर आपको याद हो सेंटर ऑफ द पेज पे आप बनाएंगे एक वर्टिकल लाइन. उसके बाद मार्क द सेंटर, ये ऑरेंज लाइन आप सबसे पहले बनाएंगे. उसके बाद यू विल मार्क द सेंटर ऑफ द लाइन एंड देन यू विल टेक कंपास. आप कंपास लेंगे और उस सेंटर से कंपास का रेडियस ओपन करेंगे 0.17 इंच के बराबर. ये तकरीबन 0.2 इंचेस के इक्वल इसका डिस्टेंस होगा. यू विल ओपन दैट आर्क यूजिंग द स्केल. रूलर में आप मेजर करेंगे, अपने कंपास को ओपन करेंगे 0.17 के बराबर और फिर आप सेंटर में कंपास का निडल, कंपास की जो सुई है, नोक है, वो आप रखेंगे यहाँ सेंटर में और उसके बाद निशान लगाएंगे. एक निशान. हमारा प्रोजेक्शन इंटरवल था 10 डिग्रीज़ का और हम ये स्टार्ट कर रहे हैं 90 डिग्रीज़ क्योंकि हर प्रोजेक्शन के सेंटर में, हर जेनिथल प्रोजेक्शन के सेंटर में
पोल होता है अगर वो पोलर केस है तो। सो 90 से आपने पहला निशान लगाया, दैट विल बी 80। फिर कंपास की नीडल को मूव करेंगे और 80 पे कंपास नीडल रख के एक और निशान लगाएंगे, दैट विल बी 70। फिर 70 पे कंपास का नीडल रखेंगे, यू विल मार्क अनदर वन, दैट विल बी 60। उसके बाद एक और लगाएंगे, दैट विल बी 70। और इसी तरह से आपने ये सारे मार्क करने हैं। ओके, यू हैव केप्ट द निडल इन द सेंटर, 0.17 को मार्क किया, फिर यहाँ पे रखा, दूसरा मार्क किया 0.17। and then you have marked a third one। तो मैं इसको इक्विडिस्टेंट बना रही हूँ, आप देखिए कि हाउ दिस विल बी डन। ये सारा काम आपने करना है कंपास से, ठीक है। और कंपास को एक ही दफ़ा आप ओपन करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग यू विल मार्क द डिस्टेंसेस एंड these should be equidistant। Although I have a ruler here at the edge of the screen, देखिए दूसरे टैब इसके ऊपर खुले हुए हैं, the message is not। 90, 80, 70, 60, 50, 40,90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, and the last 0 or greater। ओके, ये हमारी लाइन चल रही है। अब सर्कल्स, सर्कल्स को बनाने का वही तरीका है, जितनी भी मार्किंग्स हैं हर मार्किंग पे आपने अपना कंपास रखना है और फिर यू हैव टू मेक द सर्कल। कीप द कंपास नीडल हियर, यहाँ पर कंपास का नीडल रखना है, पहले निशान तक ओपन किया और सर्कल बना दिया, उसके बाद दोबारा से नीडल को यहाँ रखना है। यस,
Okay, there was a voice issue. I think it is resolved now. Can you hear now? Let me know till then. I am completing this projection. We are short of time. The meeting will be over of its own in a while. Yes, you can write and let me know if you guys can hear me. Okay, so with this, okay, now the sound is clear, voice is clear. Thank you. आप इसी तरह से कंपास को सेंटर में रख के और जितनी भी मार्किंग है हर मार्किंग के लिए आप सर्कल्स बनाते रहेंगे तो आपका प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा एंड सो इन दिस मैनर यू विल ड्रॉ ऑल द सर्कल्स और उसके बाद आप बनाएंगे मेरिडियंस जिसके लिए सबसे पहले आपने जो वर्टिकल लाइन बनाई हुई है उस वर्टिकल लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे ये लाइन जिसको मैं ट्रेस कर रही हूँ यू विल मेक दिस लाइन और इनकी लेंथ ज़रा बड़ी रखिएगा मेरी लेंथ कम है क्योंकि मैंने कॉपी किया है दूसरे मटेरियल को टू सेव टाइम तो आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बनाएंगे दिस विल बी परपेंडिकुलर यानी इस थिक ब्राउन लाइन और ये ऑरेंज लाइन जो हॉरिजॉन्टल है जिसको मैं ट्रेस कर रही हूँ इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए ये बनाने के बाद आप डी रखेंगे इस जगह पर और जो इंटरवल आपको गिवन है उस इंटरवल के अकॉर्डिंग आप उसमें एंगल्स मार्क कर देंगे और सिर्फ एक साइड पर यानी दो क्वाड्रेंट है एक क्वाड्रेंट ये और दूसरा क्वाड्रेंट ये इन दोनों क्वाड्रेंट पे आप एंगल्स मार्क करें और फिर लाइंस को उन एंगल्स की मार्किंग को सेंटर से ज्वाइन करें और दूसरी तरफ उसको एक्सटेंड कर लें तो आपके सारे मेरिडियंस बन जाएंगे उसके बाद आपने इसी तरह से लेबल करना है जैसे ये बना हुआ है ऑल्दो दिस प्रोजेक्शन इज़ इनकम्प्लीट आई एम नॉट कंप्लीटिंग इट बिकॉज इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम लेकिन आपको वीडियो की थंबनेल के अंदर इसकी कंप्लीट इमेज नज़र आ जाएगी सो दैट्स हाउ द ज़ेनिथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन इज़ डन प्रॉपर्टीज़ इसकी तकरीबन वही हैं जो बाकी सब ज़ेनिथल प्रोजेक्शन की हैं कि पैरेलल्स आर कंसेंट्रिक सर्कल्स मेरिडियंस आर स्ट्रेट लाइंस एंड दे रेडिएट फ्रॉम द सेम सेंटर और इसमें एक पॉइंट ऐड होगा दिस इज़ एन इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन so the distances will be true in this projection and again this will be azimuthal the distances the directions are also true from the center and yeah distance between parallels are the same throughout so the directions the areas will also be true नॉन पर्सपेक्टिव जेनिथल प्रोजेक्शन नॉन पर्सपेक्टिव जिसमें हमने शेडो कास्ट नहीं किया बल्कि कैलकुलेशन की बेस पे प्रोजेक्शन बनाई है दिस इज जेनिथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन